there are a lot of people who are outside the jewelry industry जिसको हमारी इंडस्ट्री में कदम रखना है. ओके, राइट. उनको पता नहीं है कि हम किस तरह से कदम रखें, हम क्या करें, हम मैनेजर कैसे बने, हम सेल्स पर्सन कैसे बने, जो नॉलेज उनको चाहिए ना, क्या सीखना पड़ेगा ये इंडस्ट्री में आने को. तो ये कोर्स बेसिकली उनके लिए है जो 12th में है, 13th में है, 15th में है, कुछ ग्रेजुएशन के बाद कुछ पढ़ाई कर रहे हैं. So any institute is means doing this things? It's called Share Skills Online. Okay. So it's a skilling body जो अलग-अलग लाइन का स्किल्स आपको सिखाती है. So because हमारा इंडस्ट्री में भी बहुत सारा अभी अब इंडस्ट्री बन गए, हम लोग भी इतना रिक्रूट करते हैं लोगों को. तो they have hosted this कि you should be teaching other people how to get into the jewelry industry also. Wow, good. Yeah. So means this is incorporated by you or what? Yeah. So this is the whole training is done by us kind of. Good. Congrats. Thanks a lot. Yeah. Jewelry industry के लिए qualification क्या होना चाहिए? Can a normal graduate can come into the jewelry industry? Correct. So good. So the whole idea is we'll be sharing all of that, and yes, even if you're a normal BCom graduate, in fact market अभी इतना खुल गया है honestly with the coming of brands, with retail जैसा grow हो रहा है कि काफी जगह पे अगर आप BCom graduate नहीं भी हो लेकिन आपने 12th किया है और आपका कॉलेज चालू है और आपका कॉलेज आप सुबह को जाके 10 बजे खलास होता है एंड यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, मराठी एंड हिंदी, ये 3 लैंग्वेजेस में प्रेजेंटेबिलिटी अच्छा है तो आपको जॉब्स मिल रहा है रिटेल में. ओके, ओनली थिंग यू शुड नो लिटिल बिट ऑफ बेसिक्स ऑफ ज्वेलरी, तो यू विल गेट अ जॉब इन द ज्वेलरी इंडस्ट्री. ओके, so the basics हम वो सिखाते हैं. so the basics which we are going to be doing in the future, which are going to be introducing, if they know that, then it is very easy for them to get enrolled into the jewelry industry. इतना मुश्किल नहीं है. Okay, in sales, in the job of sales, so बहुत सारे positions है जो मैं share करने वाला. Correct. ठीक है. मेरा व्यू ये है कि आपको सामने वाले को जानना और ये कोर्स को जानना बहुत जरूरी है before we actually get started over here and we start learning. So I'm going to share a screen over here. Okay, the screen has a small presentation which is all about what we're going to be doing today. Okay, so firstly is I welcome everybody. So you see a warm welcome from News is my company. My name is Naveen Sadarangani. और वहाँ पे एक पिक्चर है, पिक्चर पे लिखा है बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है. Okay, लेकिन मेरे को बोलने के लिए तो मेरे को बोलना पड़ेगा. Okay, I don't have a choice. I have to talk. Somebody has to talk so that somebody will talk for everybody. Vaibhav is part of Share Skills and he is the one who set up this platform called Share Skills. So you see Share Skills down there in the bottom. And his whole philosophy of Share Skills is कि सभी students अगर अपना खाली time को use करें और कुछ ना कुछ सीखने में लग जाए ना, तो जब उन लोग का नौकरी करने का टाइम आएगा या मार्केट में एंट्री करने का टाइम आएगा, they will be capable of choosing the job of their dreams. Everybody is not intended to be in the jewelry industry. Okay, कुछ लोग को jewelry industry में जाना है, उनके लिए अच्छा है. कुछ लोग को सॉफ्टवेयर में जाना है, कुछ लोग को कॉल सेंटर में जाना है, कुछ लोग को और कोई रिटेलिंग में जाना है, कुछ लोग को ऑफिस में अकाउंट्स में जाना है. हर एक का अलग अलग शौक है, लेकिन वो शौक कभी आदमी परस्यू करता है जब भी उसको पता है कि इसके जॉब का मतलब क्या है और आगे जाके क्या मिलने वाला है और क्या फ्यूचर है. तो मैं आपको जेम ज्वेलरी इंडस्ट्री का इनसाइड आउट देने वाला हूँ. ओके, मैं कौन होता हूँ वो देने का. Why will you trust me? Somebody sitting in the home wearing a night shirt, wearing a cap and talking to you. How do you think you can trust somebody? Okay, so we can't trust anybody for the right information, which is why trust ascertain करने के लिए कि आप मेरे पे भरोसा करो, मैं क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्यों ज्वेलरी इंडस्ट्री के हिसाब से बात कर सकता हूँ, उसका मैं आपको 4 मिनट का प्रेजेंटेशन दूंगा मेरे बारे में. तो आपको भरोसा होगा कि जो मैं बोल रहा हूँ उसमें बात में दम है कि नहीं. Does that make sense, Vaibhav? Yes, of course. Okay, so first I have to prove myself. It's just like somebody like this person. Okay, this person who I'm going to share a video with, he is one of the most well-known people in this country, also in the world. Okay, दुनिया में सबसे नामी आदमी है, सब लोग जिसको जानोगे वो आदमी यहाँ है. Okay, अगर वो कुछ बोलता है तो लोग सीरियसली सुनते हैं. आज के तारीख में भी उसका जो कहना है, just listen to what he has to say. Okay, the end result is that you have to trust when you want to learn. You have to believe in training कि भाई मैं कुछ भी हूँ, I am trainable. मेरे को ट्रेनिंग लेना पड़ेगा कोई ना कोई फील्ड में. और मेरा जो टैलेंट है ना, हर आदमी के पास टैलेंट है, कोई भी यूजलेस नहीं है. I don't believe anybody is useless. Everybody has talent. लेकिन टैलेंट किसका है ना,
उसका जानकारी आपको निकालना पड़ेगा। अगर सचिन तेंदुलकर फुटबॉलर होता तो शायद इतना कामयाब नहीं होता, बिकॉज हिज टैलेंट वाज फॉर क्रिकेट। आपका टैलेंट क्या है ना, आप वो खोजो। आपका टैलेंट आपका इनर पर्सनालिटी के अंदर छुपा होता है। कुछ लोग को कंप्यूटर पे काम करने को अच्छा लगता है, कुछ लोग को भटकने को अच्छा लगता है, कुछ लोग को काउंटर पे रह के कस्टमर से बात करने को अच्छा लगता है, कुछ लोग को मैथ्स अच्छा लगता है, कुछ लोग को एनालिटिकल अच्छा लगता है, कुछ लोग को नया क्रिएटिव आइडियाज अच्छा लगता है। आपका टैलेंट, हिडन टैलेंट क्या है ना, वो आप ही जानते हो। अगर आपने जो भी काम परस्यू किया जिसमें आपका हिडन टैलेंट काम में आएगा, तो ही आप लाइफ में आगे जा सकते हो। और लाइफ में आज जैसी कठिनाइयां जैसी है, आज जब भी आप लोग आ रहे थे, आई वॉज टॉकिंग टू अ वेरी बिग ज्वेलर फ्रॉम पवाई। ओके, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू, ही वाज टेलिंग मी कि भाई टाइम बहुत मुश्किल हो गया है। तो टाइम सबके लिए मुश्किल हो गया है, बट ही ऑल्सो अलॉन्ग विद स्टूडेंट्स इवन ही हैड जॉइंड इन, बिकॉज उसको जहां भी मौका मिलता है सीखने का वो खुद ही मारता है। तो उसका एटीट्यूड है कि भले वो ज्वेलर है, उसको शर्म भी नहीं है और डर नहीं है और ईगो नहीं है कि मेरे को कोई भी बच्चे जैसे 20 साल 30 साल छोटे हैं, मैं उनके साथ बैठ के भी सीख सकता हूँ और कुछ सीखूंगा। और इसमें तो वो भी आ गया था। ओके, नाउ द होल आइडिया इज ही इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई द वे ही विल डू हिज बिजनेस इन द फ्यूचर विल बी इन अ पॉजिटिव मैनर. So this is what somebody over here is saying. I'm going to introduce you to what Amitabh Bachchan has to feel about the India that we are living in. Okay, so you look at this video, listen very carefully कि वो क्या बोल रहा है और समझने का कोशिश करो, फिर ही हम आगे जाएंगे. इस देश में दो भारत बसते हैं। एक वो भारत जो जंजीर तोड़कर प्रगति की उड़ान लगाने को बेताब है, और दूसरा भारत जो खुद जंजीर है। एक भारत कहता है मुझे मौका दो, मैं खुद को साबित करके दिखाऊं। दूसरा भारत कहता है पहले खुद को साबित करो, फिर शायद तुम्हें कोई मौका मिले। एक भारत हमारे दिलों की उम्मीद में बसता है, वहीं दूसरा भारत हमारे दिमागों की संदेह। एक भारत करता है तो दूसरा भारत सोचता है। एक भारत आगे बढ़ता है तो दूसरा पीछे चलता है। लेकिन बदलाव का सूरज निकल रहा है। हर पल अनगिनत देशवासी उस भारत से इस भारत गर्व से शामिल हो रहे हैं। दुनिया टकटकी लगाए एक धड़कते गरजते भारत का उदय होते देख रही है। एक ऐसा भारत कामयाबी में जिसका भरोसा हार के डर से कहीं बड़ा है। एक ऐसा भारत जो स्वदेशी का राग छोड़कर विदेशी कंपनियों पर अपना तिरंगा लहरा रहा है। कहते हैं इतिहास हवा का वो झोंका है जो वक्त बताकर अपना रुख नहीं बदलता। बस यही वो वक्त है जब इतिहास करवट ले रहा है। आजादी के इतने वर्षों के बाद ये देश गिरते संभलते थमते बढ़ते एक नए मुकाम पर आ पहुंचे। और अब 60वें वर्ष की शुरुआत में दोनों भारत समय की कगार पर आमने सामने खड़े हैं। एक भारत नीचे की गहराई देखकर कश्मकश में है और दूसरा भारत आसमान की ओर सर उठाकर कह रहा है उड़ने का वक्त आ गया। ओके, तो ये आपको वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि आप जानो कि इंडिया में और पूरी दुनिया में ऑलवेज दो प्रकार के लोग होंगे। Whenever there is some difficulty which happens, anything which happens, we get scared और हम नेगेटिव ही सोचेंगे, क्या होएगा क्या होएगा क्या होएगा, अभी तो ऐसा होएगा, अभी तो आधा धंधा बंद हो जाएगा, फ्यूचर तो बहुत ब्लीक है, अभी मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं किया तो जॉब्स नहीं मिलेंगे, ये सब उल्टा 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 सोचते हैं। और एक वो लोग हैं जो बोलते हैं यार ये तो बहुत बड़ा चैलेंज आ गया, अभी मेरे को कुछ सोचना पड़ेगा कुछ नया करने का, तो मैं कुछ नया आइडिया निकालता हूँ जिससे मैं न्यू बिजनेस या नया आइडिया से मेरा पुराना बिजनेस क्या नया आइडिया से करूँ। मार्केट टफ है, बिजनेस मुश्किल होएगा, लेकिन आई एम श्योर कुछ ना कुछ डेवलप होएगा। तो जैसे ये दो लोगों का सोच है, वैसे पूरे इंडिया का भी सोच इसी तरह का है, एंड दैट इज व्हाट मिस्टर बच्चन इज सेइंग। व्हेन मिस्टर बच्चन सेज दिस वी लिसन प्रॉपर्ली बिकॉज ही इज मिस्टर बच्चन। हमारा आदत है इंडिया में, ओके, कि हम तीन चीज फॉलो करते हैं। ओके, तीन चीज को मैं बोलता हूँ ABC। इंडिया में कोई भी चीज मार्केटिंग करनी है, फिर वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है
कि टी शर्ट है, कि शूज है, कैप है, जड़ी बूटी है, वॉट एवर यू वांट टू मार्केट, in India you will see that people use three things. Those three things are ABC. A for astrology. Okay, astrology मतलब ऐसा करा तो ऐसा होएगा, ये करा तो ऐसा करा. बहुत हमारे पास बहुत अंधविश्वास है हमको एस्ट्रोलॉजी में. The second is B, which is Bollywood. बॉलीवुड अगर बोलता है ये स्टार वो स्टार बोलता है तो वो पहनने का. And C is cricket. We follow cricketers a lot. तो ये ABC ना इंडिया का रिलीजन है. घर में पैसे नहीं होंगे लेकिन हर आदमी आपने अपने हाथ में एक कोई मूंगा का अंगूठी, कोई पर्ल का अंगूठी, कोई सफायर का अंगूठी पहनता है. उसका पगार नहीं होएगा 5,000 का वो बेचारी लेडी का, लेकिन वो भी जब भी घर का डोमेस्टिक कोर्स करती है या बाई का काम करती है या ट्रेन में कोई आदमी लटक के जा रहा है, उसके हाथ में मैं देखता हूँ ना तो उसने भी अंगूठी पहना है और वो अंगूठी का उसने 9,000 दिया है. मतलब जो अंगूठी का वैल्यू 3,000 रुपया नहीं है उसका उसने 9,000 दिया है, बिकॉज उसको बिलीफ इतना स्ट्रांग है कि इससे मेरा किस्मत बदलेगा. सेम वे व्हेन बॉलीवुड टॉक्स, व्हेन क्रिकेटर्स टॉक, वी बिलीव विद ब्लाइंड फेथ. नाउ आई डोंट वांट यू टू हैव ब्लाइंड फेथ इन मी जस्ट बिकॉज वैभव हैज कॉट मी एंड पुट मी इन फ्रंट ऑफ योर. ओके, यस, आई एम गोइंग टू प्रूव व्हाई यू शुड ट्रस्ट मी, बिकॉज जब तक आप मेरे को ट्रस्ट नहीं करोगे ना, आप आगे का पार्ट ध्यान से नहीं सुनोगे. सो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्टोरी इन 4 minutes कि मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ, क्यों मैं जो करता हूँ. मेरे स्टोरी का नाम ही ना मैंने सेल्फिश रखा है. सेल्फिश क्यों? इट्स अ स्टोरी अबाउट सेल्फ एंड आई एम गोइंग टू शेयर. आई एम द ओनली वन अमंग ऑल of us now who's getting a chance to share my story with you. Nobody else is getting a chance to talk about themselves for 5 minutes, 10 minutes. I am the only one. So as such, I'm being selfish. But मेरा selfish होना जायज क्यों है? Because जब तक मैं अपने आप को present नहीं करूँगा, तब तक आप मेरी आगे की बातें नहीं सुनोगे. Okay? So this is my different avatars. Okay, so when I'm a teacher, when I'm a student, I'm very much interested in sports. I have a cricket team of TV stars. I do a lot of work in that zone also. Because sports, इनोवेटिव आइडियाज, ट्रेनिंग, वो सब में बहुत इंटरेस्ट है. जैसे मोस्ट ऑफ यू आर, इवन आई वाज फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास फैमिली. आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली. दोज आर माय पेरेंट्स, दैट इज माय फैमिली, दैट इज माय वाइफ, माय डॉटर, माय सेल्फ ओवर देयर, एंड दिस इज टिपिकली अ टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली. इसके लिए मेरी शुरुआत भी जब हुई ना, तो मेरी शुरुआत बहुत छोटे तरह से हुई. 1992 में मैंने मेरा पहला नौकरी किया. मेरे को नौकरी मिला ये कंपनी में और बाय फ्लूक में ज्वेलरी इंडस्ट्री में नौकरी करने को चला गया. यहाँ पे मेरा पगार 1,600 रुपया था महीने का. आई स्टार्टेड विद 1,600 रुपीज अ मंथ फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 1.5 year. बोलने को मेरे को इंटरनेशनल सेल्स संभालने दिया था, लेकिन सीखने को इतना कुछ नहीं मिल रहा था. 1-1.5 साल नौकरी करने के बाद मेरे को भी आया कि शायद मेरे को ये कंपनी छोड़ना चाहिए. ये कंपनी ने पूछा कि आप क्यों छोड़ना चाहते हैं? मतलब मेरे को कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है. काम तो आपने दे दिया, लग रहा है कि बड़ी फैक्ट्री है, बड़ी कंपनी है, सीप्स है, ऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ है, लेकिन मेरे को कुछ नहीं ज्यादा सीखने मिल रहा है. मैं तो पेपर वर्क कर रहा हूँ, सीखने का कहाँ है? दे सेड वी विल ट्रेन यू प्रोवाइडेड यू स्टिक विद अस. तो उन्होंने मेरे को बाबू के जैसा, वर्कर के जैसा फैक्ट्री में बिठा दिया 7 महीना, और मेरा जो पगार था 1,600 का वो चालू रखा विद द प्रॉमिस दैट मैं सब कुछ सीख के उनके लिए एक नई फैक्ट्री खड़ा करूं और वो संभालूं. तो आफ्टर डूइंग दैट आई लर्न प्रोडक्शन, एंड इन दैट सेम फैक्ट्री आप नीचे राइट बॉटम में देखोगे एक छोटा पिक्चर है, वहां पे लिखा है इंटरगोल्ड इंडिया लिमिटेड प्लैटिनम डिवीजन. तो एक छोटा, बड़े फैक्ट्री में एक छोटा मेरे को 3,000 स्क्वायर फीट का जगह दे दिया कि आप 20 वर्कर को लेके एक फैक्ट्री, मिनी फैक्ट्री चालू करो जहां से प्लैटिनम इंडिया से एक्सपोर्ट होएगा इंटरनेशनल मार्केट पे. बिकॉज वो मैं सक्सेसफुली कर पाया, बिकॉज मेरे को ट्रेनिंग मिला था. फिर कंपनी ने बोला कि लिसन, यू आर डूइंग वेरी वेल, यू नीड टू ग्रो. जब भी कंपनी ने अपना रिटेल वेंचर चालू किया, यही कंपनी, ओके, फर्स्ट आई वाज डूइंग इंटरनेशनल सेल्स, देन आई वाज रनिंग अ फैक्ट्री. जब भी रिटेल वेंचर चालू किया तो मेरे को बोला कि आप तो पीपल्स पर्सन हो, आप फैक्ट्री में कितने टाइम बंद रहोगे, आप हमारे साथ बाहर निकलो और हमारी रिटेल की दुकान शुरुआत करो. तो ये जो ब्रांड ऑरा है, जब ये शुरुआत हुई थी उसका नाम इंटरगोल्ड था. तो 7 years आई वाज हेडिंग ऑल द रिटेल ऑपरेशंस ऑफ ऑरा. So I began by doing inventory management. Inventory means stock keeping, quality control, वो सब कर रहा था बैक ऑफिस का. फिर मेरे को बोला कि listen, you are the one who knows सबसे ज्यादा ज्वेलरी के बारे में, आप बेचो. तो मेरे को ऊपर से नीचे निकाल के मेरे को दुकान का मैनेजर बना दिया, पहली दुकान. और वहां पे मैंने ज्वेलरी बेचने को शुरुआत किया. तो whether it is the biggest celebrity and the biggest star and a Katrina Kaif and a Serena Jaitley to the Femina Miss India, मैंने हर एक को पर्सनली ज्वेलरी बेचा. जैसे आपको यहाँ दिख रहा है, those are all my pictures, okay, when I was selling jewelry.
Okay? So from a Sachin, you see Zakir Hussain, Shobha Day, Rahul Dravid, Rageshwari, all of this I was doing when I was running that store. I was the manager and I had a small team of people with me. Okay? Automatically, because मैं जिम्मेदारी लेने गया और मैंने वही कंपनी के साथ 5 साल काम किया, तो मेरा पगार भी बढ़ गया, मेरा पगार बढ़ते गया. तो शुरुआत 1600 से हुई थी, लेकिन 5 साल के बाद मेरा पगार 7000 रुपया हो गया था, 8000 हो गया था. आज वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज 7000 इज नथिंग. ऑल ऑफ यू वांट टू स्टार्ट विद द सैलरी ऑफ 10,000 रुपीज, बट वो जमाने में 1600 वाज डिसेंट फॉर अ ग्रेजुएट टू स्टार्ट. ये करने के बाद मेरे को बोला कि लिसन, आप एक दुकान मत संभालो, हमको दुकान ग्रो करना है, तो आप घूमो फिरो और सारे दुकान संभालो. तो मेरा जॉब बदल गया था कि बॉम्बे में एक दुकान से मेरे को 5 दुकान लगाने को बोला. तो एक यूजिस रोड से लेके पवाई में लेके एट अंधेरी लोखंडवाला, एट घाटकोपर, एट बोरली, आई सेट अप 5 stores and I became operations manager of all those 5 stores, and this is the way my profile changed. Okay, after setting up 5 stores, the company said अभी हमको पूरी इंडिया में दुकान डालना है, आप अभी खाली बॉम्बे मत देखो. तो मेरे को बोला कि आप पूरी इंडिया घूमो और जहां सही लगा वहां पे आप दुकान सेटअप करो. दुकान सेटअप करके आप उस दुकान का मार्केटिंग करो और मर्चेंडाइजिंग करो. मार्केटिंग का मतलब रिटेल शॉप के लिए एडवर्टाइजिंग, पीआर, सोशल मीडिया, ब्रांड मैनेजमेंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सीआरएम, ये सब मार्केटिंग होता है. तो उन्होंने बोला कि अगर हमारे पास अभी 17 दुकान पूरी इंडिया में हो गई है, ये दुकान को चलाने के लिए मार्केटिंग बहुत ही अच्छी तरह से करना पड़ेगा, वो आप संभालो. मर्चेंडाइजिंग होता है राइट स्टॉक. हमारे दिल्ली के दुकान में कौन सा स्टॉक होना चाहिए, कलकत्ता में क्या होना चाहिए, घाटकोपर में क्या होना चाहिए, पवाई में क्या होना चाहिए, बोरीवली में क्या होना चाहिए, सब जगह स्टॉक ना अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए. सेम स्टॉक सब जगह चलेगा नहीं, हर एक मार्केट का टेस्ट अलग होता है. तो ये जो मार्केट का टेस्ट जानने का जो किस्सा होता है ना ज्वेलरी में, उसको मर्चेंडाइजिंग बोलते हैं हर चीज में. ओके, तो अगर फॉर एग्जांपल नाइकी ये टी शर्ट लॉन्च करेगा और इस डिजाइन को लॉन्च करेगा, नाइकी जानता है कि मैंने ब्लू टी शर्ट बहुत बनाई है, तो अभी मेरे को येलो, मेरे को पिंक, मेरे को रेड, मेरे को ग्रीन, मेरे को टर्कोइज ब्लू में, मैं ये 5 कलर में ये टी शर्ट बनाऊंगा. और ये टी शर्ट सबसे ज्यादा मीडियम साइज बिकती है, तो मैं मीडियम इतना, एक्सेल इतना, लार्ज इतना, स्मॉल इतना, इस तरह से बनाऊंगा. ये सेम टी शर्ट का वर्जन मैं लेडीज के लिए बनाऊंगा, उसका फिटिंग अलग होगा. ये जो साइंस होता है ना, ये साइंस को मर्चेंडाइजिंग बोलते हैं. तो वो कपड़े वाले भी करते हैं, वो ज्वेलरी वाले भी करते हैं, वो किराने वाले भी करते हैं. सो नोइंग व्हाट इज द राइट प्रोडक्ट एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम इज कॉल्ड मर्चेंडाइजिंग. तो बिकॉज हमारी दुकानें बढ़ गई थी, मेरे को बोला कि ये सारा दुकान तो तू नहीं संभाल सकता, ये सारे दुकान का मर्चेंडाइजिंग संभाल, सारे दुकान. So I was traveling all over the country and I came to know what sells, where it sells, how to set up a shop, how to take people, how to recruit them, coding करूं, मीडिया टाइम्स का, मीडिया नेट करूं, बॉम्बे टाइम्स करूं, क्या करूं जिससे धंधा मेरे दुकान का हो. So I was doing this. After that, the company also decided to set up a wholesale company. Okay, ये सब रिटेल में था. होलसेल मतलब जहाँ पे हम लोग सप्लाई कर रहे हैं ज्वेलरी सारे अलग अलग फैमिली ज्वेलर्स को. अगर आप में से कुछ लोग बोरीवली के हैं, तो बोरीवली में एक रोड है एलटी रोड. एलटी रोड पे बहुत सारे दुकानें हैं. ओके, फ्रॉम मनु भाई, ओम ज्वेलर्स, you have Gadgil, you have Tanish, you have Jayesh Art Jewelers in Malad, you have Antara, you have so many jewelers. हर ज्वेलर का टेस्ट ऑफ ज्वेलरी ना अलग अलग है. तो इनको क्या सप्लाई करता है, एक कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करता है सप्लाई करता है. तो मैं उसी तरह की एक मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को इसी ग्रुप की मैंने हेड किया और 2.5 साल में पूरी इंडिया में घुमा और मैं ज्वेलरी सप्लाई करता. तो बिकॉज मेरा बर्थ एक फैमिली, एक ज्वेलर के घर पे नहीं हुआ, मैंने फिर भी वो इंडस्ट्री को और वो काम को परस्यू किया और मेरे को 4 अलग अलग बिजनेसेस सीखने को मिला. मेरा व्यू है कि अगर मैं ज्वेलर, एक रिटेलर या ज्वेलरी रिटेलर के घर में पैदा होता और मैं वो एक दुकान संभालता, तो मैं आज तक वो एक ही दुकान संभालता और मेरे को खाली रिटेलिंग आता, मेरे को ये 4 अलग अलग बिजनेस नहीं आता, मेरे को पूरी इंडिया घूमने का मौका नहीं मिलता. मेरे को वो एक ही दुकान की 4 दीवारी में वो 2000 ग्राहक के बारे में सब कुछ पता चलता. लेकिन बिकॉज आई वॉज नॉट अ ज्वेलर, आई गॉट टू लर्न सो मच. सो इट्स द सेम थिंग व्हिच अप्लाइज टू ऑल ऑफ यू. अगर आप में चाह है सीखने की, तो आप कुछ भी सीख सकते हो. If I was a jeweler, I would not get to learn all of it. I would get to learn only one business, which was the father's business. But because I was not a jeweler and because मेरे को ज्वेलरी का धंधा नहीं करने का था, my bosses allowed me
to learn everything, and I got to learn four businesses and started with it. After this is only when in 2005 मैंने बोला कि मैं ज्वेलरी के बारे में इतना सीख गया हूँ, मैं खुद की कंपनी शुरुआत करूंगा. मेरी खुद की कंपनी का नाम है न्यूज. मेरा नाम नवीन है. नवीन का मतलब लोकल लैंग्वेज में नया, तो न्यू. सदारंगानी बहुत लंबा है मेरा सरनेम, तो एस ले लो, तो न्यू प्लस एस बिकम्स न्यूज. उसको अगर मेरे को ट्रेडमार्क करना है या उसको अगर मेरे को ब्रांड बनाना है तो NEWS का स्पेलिंग मैंने NYUZ कर लिया. NYUZ कर दिया तो नाम हो गया वो न्यूज. दैट्स व्हाट न्यूज इज अबाउट. और न्यूज में हम लोग, जैसे हम आपका ट्रेनिंग कर रहे हैं, वैसे इंडिया के टॉप मोस्ट ज्वेलर्स लोग का हम ट्रेनिंग करते हैं. तो उनके सेल्स स्टाफ का जो ट्रेनिंग है वो हम पूरी इंडिया में घूम फिर के करते हैं. हम बहुत ही छोटी टीम है, हम अंधेरी बॉम्बे में है, और हम सेल्स स्टाफ ट्रेनिंग से लेके ओनर्स का कंसल्टिंग सब कुछ करते हैं. This is the kind of training that we are doing and how we do it. There are classes, there's interactive mythology. इस तरह से हम लोग करते हैं पूरी इंडिया में. अब जितने भी बड़े ब्रांड्स लोग हैं, जितने भी फैमिली ज्वेलर लोग हैं, उनके स्टाफ का ट्रेनिंग हम ही करते आए. So this is all about news. Also, because we are training sales people and we made a difference to the industry, बड़े बड़े ज्वेलरी इंडस्ट्री के कॉन्फ्रेंस पे भी हमको बुलाया जाता है एज नॉलेज पार्टनर टू प्रेजेंट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द ज्वेलरी इंडस्ट्री. तो हमारा रीच एज कोचिंग एंड कंसल्टिंग ज्वेलरी इंडस्ट्री में बहुत बड़ा और बड़े पैमाने पर हो गया. आई डोंट वांट टू से एनीथिंग एल्स. जिसको ज्यादा जानना है वो nyuz.com पे जाएगा, उसको हमारी कंपनी के बारे में सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. ओके, आई डोंट वांट टू बोर यू विथ मोर ऑफ माई सेल्फ. ये भी मेरे को आपको बताना इसके लिए इम्पोर्टेंट था, बिकॉज जब तक आप सामने वाले पे भरोसा नहीं करोगे, जब तक आप उसका क्या नॉलेज है. हम स्कूल में भी जाते हैं तो हम नामी स्कूल में इसके लिए जाते हैं बिकॉज हम जानते हैं कि ये नामी स्कूल है तो इसके प्रोफेसर्स लोग ट्रेंड होंगे. So over here you have come because somebody called Share Skills Online has got you here. Whether learn or not learn is dependent on you. ये learning तभी होएगा जब भी आप सामने वाले को accept करेंगे. इसके लिए अमिताभ बच्चन तो ऑलरेडी accepted है, तो उसने जो बोल लिया आपने मान लिया. मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूँ, तो मेरे को अपना credentials prove करने के लिए, मैंने एक trust जगाने के लिए मैंने आपको मेरा background दे दिया. Okay? Now going forward, okay, as we go forward, जो मुद्दा है, the reason we are all here is because we are largely students, or we could be people who have given up studying and are looking to get into a job, or we are people who are doing some job but we are not very happy but want to get into a better job. और हमको लग रहा है कि शायद ज्वेलरी इंडस्ट्री हमारे लिए एक अच्छा माध्यम है, या there is an industry called jewelry, और हमारे लिए ये शायद एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है. अगर आपका सोच ये है तो ये जो चीज मैं आपसे शेयर करने वाला है आपके लिए एकदम परफेक्ट है, बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्चुअली गिव यू एन इनसाइट एज टू हाउ टू गो अबाउट द ज्वेलरी इंडस्ट्री. ओके, ये इनसाइट मैं थ्रू सम प्रेजेंटेशन दूंगा. आप ध्यान से वो प्रेजेंटेशन देखो, लेकिन उससे ज्यादा आप ध्यान दो जो मैं बोलना चाहता हूँ. whatever I'm talking, Vaibhav, is it making sense to you so far? Yes. Is of the course. language understandable by everybody, you think? Yes, comfortable, एकदम comfortable. Going ahead from here, हम सब इंडिया में हैं, आप सब इंडिया को देख रहे हो. मैं कब से इंडिया को देख रहा हूँ. एवरी टाइम मेरे को नई गवर्नमेंट बदलती है, नई सरकार आती है, सभी लोग होप दिखाते हैं कि अरे अभी तो इंडिया आगे जाने वाला है. ये 2007 से मैं देख रहा हूँ, ईयर ऑफ इंडिया. आज भी लोग बोलते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, कभी आने वाले हैं, कैसे आने वाले. ओके, ये एक हमारी प्रवृत्ति है, हमारा नेचर है कि हम सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं. अगर हम आज के दिनों में, इन दीज डेज ऑफ द वायरस, इफ यू लुक एट द टीवी, जो भी आपको दिखेगा ना, पूरी दुनिया का हालत जो दिख रहा है और इंडिया का हालत जो दिख रहा है, अगर आप समझदार हो तो आपको लगेगा कि लिसन, हम लोग फिर भी दुनिया से बेटर हैं. हम लोग फिर भी बहुत ज्यादा टॉलरेंट है. हम लोग फिर भी बहुत ज्यादा सुनते हैं ऊपर वाले की. अगर ऊपर वाला बोलता है कि लॉकडाउन मानो, तो हम लोग मान रहे हैं. नॉट लाइक द अदर कंट्रीज विच आर गोइंग हेवायर. तो हमारे में जो सहनशीलता, जो टॉलरेंस, जो वर्च्यूज है ना, बाकी के देशों में नहीं है. इसी के कारण वी हैव बीन प्रोजेक्टेड इन द वर्ल्ड एज अ वर्ल्ड लीडर. फाइनली वी फील दैट इन द कमिंग टाइम्स, अगले 1.5, 2, 3 साल में ना, हम एक्चुअली सुपर पावर बनने का चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है. People are actually hoping that the world will look at India as the super economy for production, for marketing, for distribution, because यहाँ पे labor भी cheap है, technology भी
जो मांगता है हम लोग बराबर से डेवलप करते हैं। जितने भी ज्ञानी लोग हैं, जितने भी आईटी के लोग पूरी दुनिया में हैं, सब इंडियंस ही हैं, यहाँ से ही जाते हैं। आज दुबई में भी लोग दुबई चला रहे हैं तो इंडियंस ही हैं जो दुबई चला रहे हैं। तो इफ वी हैव सो मच ऑफ टैलेंट, देन अभी अगर पूरी दुनिया को अगर रीसेट बटन दबा दिया है भगवान ने कि अभी स्टार्टिंग से शुरुआत करो, तो आज हमारा पलड़ा इज वेरी भारी, वी आर एट इक्वल लेवल। ये लेवल से हमको जंप मारने के लिए ना हमको 2-3 चीज ही चाहिए। वो चीज है, एक है हमको टैलेंट चाहिए जो हमारे पास है, और दूसरा जो नया टैलेंट है, जो नया जनरेशन है, उसको ट्रेनिंग का माध्यम पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन इंडिया विल एक्चुअली बी अ सुपर पावर। सेम वे व्हेन इंडिया बिकम्स अ सुपर पावर, व्हेन एवरीथिंग ग्रोज, ऑटोमेटिकली इंडिया का जो पॉपुलेशन है, whether it is girls, whether it is women, whether it is old ladies, जो भी पैसा बचता है ना और जो हम घर में बचाते हैं, every year people end up buying some jewelry or the other। आज के जमाने में शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज वो इसेंशियल प्रोडक्ट नहीं है, इट्स अ नॉन इसेंशियल प्रोडक्ट, इट्स नॉट लाइक रोटी कपड़ा मकान, इट कम्स मच लेटर। लेकिन हर औरत, हर वुमेन पैसा बचा के वो कुछ ना कुछ ज्वेलरी लेती है। गरीब भी होता है ना, गरीब के घर पे भी जब भी शादी होता है ना, तो वो भी 2-3 चीज ऑफ ज्वेलरी लेता है। वो इतना छोटा वाटी वाला मंगलसूत्र भी लेगा, भले वो 3 ग्राम सोने का होएगा। वो इतना छोटा नथ भी लेगा, भले वो 1 ग्राम का होएगा। भले वो बहू को कान का बाली देगा, भले वो 4 ग्राम का होएगा। बैंगल देगा, 6 ग्राम का होएगा। तो फ्रॉम द लोएस्ट रंग ऑफ सोसाइटी इन इंडिया टू द हाईएस्ट रंग, एवरीबडी बिलीव्स दैट सेलिब्रेशन को ज्वेलरी के साथ होना चाहिए। कोई भी ज्वेलरी को इग्नोर नहीं करता है। ओके, बिकॉज ऑफ दिस हमारा देश का आबादी बहुत ज्यादा है, इसके लिए हमारा ज्वेलरी इंडस्ट्री जो है ना वो ऑलवेज स्पार्कलिंग होएगा। इसके लिए मैंने वहां पे स्पार्कल डाला डायमंड का, कि इंडस्ट्री ऑलवेज स्पार्कल होने वाला है इंडिया में, बिकॉज अनलाइक अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर ज्वेलरी इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, हमारे वहां ज्वेलरी इन्वेस्टमेंट भी है, अडॉर्नमेंट भी है। तो हम लोग इस पे इन्वेस्ट करते हैं। इसके कारण जो देखा गया है ना हमारे देश में ज्वेलरी इंडस्ट्री को लेके, मैं आपको बड़ा पिक्चर इसके लिए दिखा रहा हूँ तो आपको मेकअप करने हुए कि क्या ये फ्यूचर है कि नहीं है इंडस्ट्री में, उसके लिए आपको बड़ा पैमाना समझना पड़ेगा। पूरी दुनिया में हम लोग ना एक जमाने तक, टिल अबाउट अ कपल ऑफ इयर्स बैक, वी वर नंबर 1 प्रोड्यूसर्स ऑफ कंज्यूमर्स ऑफ गोल्ड। दुनिया को लगता है हम गरीब देश हैं, लेकिन सारे देशों से सबसे ज्यादा सोना हम लोग खपा देते। अभी लास्ट 1.5 साल से चाइना नंबर 1 हो गया, हम लोग सेकंड हो गए। बट येट पूरी दुनिया का 30% सोना हमारे पास है। सोचो, पूरी दुनिया एक तरफ, इंडिया एक तरफ, 30% ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड इज कंज्यूम्ड बाय इंडिया, व्हिच मींस देयर इज सो मच मनी व्हिच वी डोंट नो। हम लोग खाली दिखते हैं गरीब, लेकिन हर आदमी के पास बचा बचा के सोना पड़ा गया है। डायमंड जो बहुत ही एक्सपेंसिव स्टोन माना जाता है, पूरी दुनिया का 3rd लार्जेस्ट डायमंड ज्वेलरी मार्केट इंडिया है। नंबर 1 अमेरिका है, उसके बाद चाइना जापान शेयर करते हैं और बाद में इंडिया आता है। दिस इज द स्टेटस ऑफ इंडिया इवन इन डायमंड्स। मतलब इंडिया नॉट ओनली गोल्ड बट ज्वेलरी और डायमंड में भी बहुत इन्वेस्ट करता है। नंबर 3 एक नया मेटल था प्लैटिनम, जो सफेद कलर का था, बहुत ही हार्ड मेटल था। वो लॉन्च होके इंडिया में 2000 में लॉन्च हुआ। 15 दुकान 16 दुकान में था फर्स्ट ईयर में। आज 700 दुकान में प्लैटिनम मिल रहा है। मतलब ये भी मेटल जो जिसके बारे में किसको नॉलेज नहीं है, पूरी इंडिया में एक्सेप्ट हो गया। ये सारे अलग अलग काइंड ऑफ पुराने रिटेलर्स हैं। ओके, मे बी वी नो ऑफ सम, मे बी वी डोंट नो ऑफ सम, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर नॉट इन इंडिया और नॉट इन बॉम्बे, दे आर फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। इनको छोड़ के एक अलग पीढ़ी ऑफ रिटेलर्स आ गए हैं। ये लास्ट 10 साल की पीढ़ी थी। आज जो रिटेलर्स आ गए, यू हैव द तनेश, यू हैव कल्याण, यू हैव बोर्ड में मनु भाई, बैंड्रा में अनमोल, गहना, साउथ बॉम्बे में यूटी जवेरी ले लो, घना सिंह ले लो, ऐसे हर मार्केट में, वामन हरी पेठे ले लो दादर में, चिंतामणी ले लो दादर में, पूना में पीएन गाडगिल ले लो, ब्रांड ले लो, देयर इज मलाबार, जॉय लुकास। तो इतने सारे नए नाम, इतनी सारी नई कंपनी आ गई है। हर ब्रांड जो पूरी इंडिया में फैला हुआ है, उसके पास 200-300 दुकान है। वो 200-300 दुकान में हर ब्रांड के पास 40-50 सेल्स पीपल है। इतने सारे लोग की रिक्वायरमेंट है ओनली सेल्स में, अगर हम रिटेल देखते हैं। लेकिन रिटेल में एक बैक ऑफिस भी है जहां पे बहुत कुछ काम होता है। जो मैंने बोला कि मैं इन्वेंट्री संभालता था, मैं मर्चेंडाइजिंग संभालता था, मैं मार्केटिंग संभालता था,
मैं बैक ऑफिस का ऑपरेशन समझता। तो हर बड़ा रिटेल कंपनी को एक बैक एंड टीम भी होता है जो बैक ऑफिस काम करता है। The point I'm trying to put across is just like any other industry, जैसे कार इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है, बहुत सारी अदर कपड़े की इंडस्ट्री है, ज्वेलरी का भी धंधा जो हम पहले एक दुकान बोलते थे, अभी वो ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री हो गई है, और उसमें भी हम सबका घुसना, या जिसको शौक है ज्वेलरी का घुसना, देयर इज स्कोप फॉर एवरीबॉडी इन दिस थिंग. Like most of you will say, and the first question Vaibhav asked me is that, sir, आपको लगता है ग्रेजुएट होने के बाद इसको नौकरी मिल सकती है यहाँ पे? My answer to him was, ग्रेजुएशन छोड़ो, अगर कोई 12वीं पास भी है और FY कर रहा है, पढ़ाई चालू है, और वो सुबह को कॉलेज जाता है, और कॉलेज जाने के साथ साथ वो नौकरी भी करना चाहता है, then also there is a choice of choosing to be in jewelry. In which part of jewelry? ज्वेलरी रिटेल में तो उसको जॉब मिल ही जाएगा. क्यों? क्योंकि उसको जो नॉलेज चाहिए ना ज्वेलरी रिटेल का, वो शॉर्टकट में एक तरीका है जहां से वो गेन कर सकता है वो नॉलेज. अगर वो पर्सन, अगर वो लड़का या लड़की 20, 21 ईयर, 22 ईयर्स, 19 ईयर्स, थोड़ा मेच्योर है, थोड़ा उसका पर्सनैलिटी ठीक है, थोड़ा डिसिप्लिन है, ईमानदार है, एथिकल है, और वो ज्वेलरी इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ सीख लेता है, एंड वी हैव अ कोर्स आफ्टर दिस व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू, कि ये कोर्स अगर आपने कर लिया, ओके, वो कोर्स का नॉलेज, इतना सारा नॉलेज है कि आप सरप्राइज होगे कि इतने सारे लोग जो काउंटर के पीछे खड़े हैं ना, उनको भी वो नॉलेज नहीं होगा जो आपको मिल सकता है इन एज लेस एज 9 days. 3 days का हम 3 कोर्स करने वाले हैं. 3 दिन 3 दिन 3 दिन. एक कोर्स प्रोडक्ट का होएगा, एक कोर्स मार्केट का होएगा, एक कोर्स हाउ टू फिट योरसेल्फ इनटू द मार्केट का होएगा. ओके, ये तीनों कोर्स 3 घंटा 3 घंटा 3 घंटा, रोज 1-1 घंटा का, इस तरह का होएगा. वो कोर्स के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा. लेकिन अगर आपने वो किया, और अगर आप एक स्मार्ट पर्सन हो, जो ग्रेजुएट हो, अंडर ग्रेजुएट है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मे बी लिटिल बिट ऑफ गुजराती भी अगर आता है, तो आपको ज्वेलरी इंडस्ट्री में नौकरी मिलना बहुत मुश्किल नहीं है, रिटेल में. और मेरा बिलीफ है कि रिटेल में फ्रंटलाइन जो सर्विस करता है ना, जो काउंटर पे होता है, जो सेल्स करता है या कस्टमर सर्विस करता है, आने वाले टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन वो होने वाला है. और वही जॉब्स सबसे ज्यादा है, बिकॉज पीपल डोंट नीड सो मेनी मार्केटिंग पीपल, they don't need so many advertising people, they don't need so many people for management, they need many people on the counter for sales. और हर दुकान में सेल्स के 20 जन होते हैं और बैक ऑफिस के 2 जन 3 जन 4 जन होते हैं. बड़ा ब्रांड हुआ तो उसके पास सेल्स के 10,000 लोग होते हैं और ऑफिस के 600 लोग 400 लोग होते हैं. तो सबसे easiest to get a job in the jewelry retail industry is in the frontline sales, which is in retail. Some of you may like it, some of you may say नहीं, मेरे को काउंटर पे सेल्स गर्ल नहीं बनना है, I don't like to be called a sales girl. वो आपका सोच है कि आप सेल्स गर्ल अपने आप को समझते हो. लेकिन जो भी काम आपको ज्वेलरी में करना है, अगर आपने काउंटर पे रह के सेलिंग नहीं किया ना, आप कुछ भी नहीं सीखोगे. शायद सेल्स गर्ल बनना आपका एंट्री है ज्वेलरी इंडस्ट्री में. शायद 2 साल के बाद आप इतना कुछ सीख लोगे कि आप शायद बॉस से बोल सकते हो कि कैन आई बी पार्ट ऑफ द HR डिपार्टमेंट, बिकॉज आई एम एबल टू सॉल्व पीपल प्रॉब्लम वेरी वेल. मैं सेल्स में भी हूँ, लेकिन जो भी अंदर का झगड़ा होता है मैं सॉल्व कर सकती हूँ. प्लस मेरे को कंप्यूटर्स आता है, प्लस मेरा इंटरेस्ट है HR में. क्या मैं HR टीम का हिस्सा बन सकती हूँ? या क्या कैन यू गिव मी द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ HR? मे बी इफ इट इज अ स्मॉल स्टोर दे विल अलाउ यू टू डू दैट. दे विल नॉट इंसिस्ट कि आपके पास HR मैनेजमेंट किया है क्या, आपने आपके पास क्वालिफिकेशन है क्या, शायद नहीं. बिकॉज HR इन अ ज्वेलरी शॉप is a very simple job. It doesn't require too many complexities. So beginning from the sales counter, you can choose to be in HR. You can start learning designing by the way, and you can even become a designer. You can start learning social media and you can be part of the brand management team. बहुत कुछ बन सकते हो. लेकिन ये सब कुछ बनने को ना, आपको काउंटर का एक्सपीरियंस और कस्टमर का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है. इसके लिए मेरा मानना है कि फ्रंटलाइन सेल्स एंड कस्टमर सर्विस पीपल इन अ ज्वेलरी स्टोर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. उनको ही एक्चुअली पता है कि एक्चुअली क्या हो रहा है मार्केट. ये सारा बड़े धंधे का एक रूप है. ओके, कि बड़े बड़े जो दुकान होते हैं उनके पास बहुत सारा पैसा होता है, तो उनके पास बहुत सारी डिजाइन होती है, उन लोगों का मर्चेंडाइजिंग टीम होता है, बहुत बहुत जगह पे दुकान खोलते हैं. तनिष का बोल रहे 200 के ऊपर दुकानें हैं, सेंको के 70 के ऊपर दुकानें हैं. तो उनके पास पैसा है और बहुत दुकानें खोल सकते हैं. एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, मतलब
अमिताभ बच्चन से लेके कटरीना कैफ से लेके करीना से लेके प्रियंका, सबको उन्होंने अपना मार्केटिंग प्रमोशंस पीआर में। तो पैसे से ये सब पॉसिबल है, लेकिन अच्छा आदमी जो काउंटर पे अपना जॉब बराबर से करे, लगन से करे ना, वो मिलना सभी कंपनी को बहुत मुश्किल है। So for all of you who are students, if you make up your mind that you want to learn the jewelry industry and then get in, then there is a very big potential, because आज की तारीख में ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो भी काउंटर पे है ना, वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। आप जाके जब इंटरेक्ट करोगे आपको पता चलेगा कि दे आर नॉट द मोस्ट एजुकेटेड। और कस्टमर्स जो नए आ रहे हैं वो सब इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, सोशल मीडिया पे देख के इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और सामने वाले को इंग्लिश बात करने नहीं आता है। So if you are well spoken, if you have a good personality, if you're able to discipline yourself, if you're ethical, all of this, and you do a basic course in jewelry, it's very easy to get good, and there is nothing in this industry which can beat human resource capital. Human resource capital मतलब people का capital, आदमी लोग सबसे ज्यादा important है। दुकान, एडवर्टाइजिंग, ज्वेलरी डिजाइन, वो सब पैसे का चक्कर है जो मालिक के पास है, उसके पास अच्छे लोग नहीं है। एंड अच्छे लोग हम सब बन सकते हैं अगर हम बराबर ट्रेन हो जाइए इंडस्ट्री के लिए। And you can get all of this. You can get a guaranteed employment just like any other bank job or whatever corporate job. यहाँ पे भी अगर आप अच्छे आदमी हैं तो आपको guaranteed employment मिल सकता है। मैंने पूरी लाइफ, मेरी कंपनी चालू करने के पहले 13 years I was with one company. Okay, so I was not switching jobs to get a 20% pay hike. अगर नौकरी छोड़ते हैं तो और कोई आपको 10%, 20% ज्यादा देता है, लेकिन अगर आप सेम कंपनी के साथ काम करो ज्वेलरी में, आपको ग्रोथ बहुत बड़ा मिलता है और आपको जिम्मेदारी का काम मिलता है, आपका सीखना भी चालू होता है, और सडनली आपका जो लेवल है ना वो एक अलग लेवल हो जाता है जो नौकरी छोड़ने से नहीं हो सकता। तो यू विल गेट अ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, यू विल गेट रिस्पेक्टेबल जॉब, यू विल बी ट्रेन्ड। पहले ट्रेनिंग का कल्चर नहीं था, अब जब से हमने शुरुआत की है ना, बहुत सारे ट्रेनिंग कंपनी और लैब्स और इंस्टीट्यूट्स आ गए ज्वेलरी में जहाँ पे ट्रेनिंग भी होता है, स्कोप फॉर ग्रोथ भी होता है। मतलब सेल्स पर्सन बन के अगर आप चाहो तो आप बॉस को अप्रोच कर सकते हो, बैक ऑफिस के लिए, मार्केटिंग के लिए, एग्जीबिशन के लिए, वो सब के लिए, एंड देयर विल बी रिवॉर्ड्स फॉर परफॉर्मेंस। सो बियॉन्ड योर सैलरी देयर कुड बी अदर रिवॉर्ड्स लाइक इंसेंटिव्स, कमीशंस, मोटिवेशनल प्रोग्राम्स, स्टाफ वेलफेयर अवार्ड। ये सब अभी छोटे छोटे कंपनी जो फैमिली ज्वेल्स हैं उन्होंने भी शुरुआत की है। इट्स नॉट ओनली कि आपको तनिष्क के साथ ही काम करना है, ब्रांड के साथ काम करना है, बहुत सारे फैमिली ज्वेलर्स ने भी ये सब चालू कर दिया है सिस्टम से काम करने। ये मैं नहीं, तो आपको किस चीज की जरूरत है अगर आपको ज्वेलरी इंडस्ट्री में जाना है? तो मेरा व्यू है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री ना बाकी की इंडस्ट्री के जैसा नहीं है। ओके, ज्वेलरी का इंडस्ट्री बहुत ही स्पेसिफिक इंडस्ट्री है, इसमें नॉलेज इन्वॉल्व है। इट्स नॉट लाइक वर्किंग फॉर नाइकी और रीबॉक और वर्किंग फॉर अ कपड़े का दुकान विच इज सेलिंग टी शर्ट्स। ओके, वहां पे आप खड़े रह गए, टी शर्ट वहां पे लगाया है, 70 टी शर्ट, हर टी शर्ट पे टैग प्राइस लिखा है 999, 1499, 2499। कस्टमर को मालूम है मेरा एक्सेल साइज है, मीडियम साइज है, उठाएगा, आपको पूछेगा मैं ट्राई कर सकता हूँ, आप उसको ट्रायल रूम में पहुंचाओगे, वो बाहर आएगा, वो बिल बना देगा। देयर इज नो सेलिंग एज सच रिक्वायर्ड। बट ज्वेलरी में इस तरह का काम नहीं होता है। ज्वेलरी में बहुत सारा क्वेश्चन कस्टमर पूछता है, ये गोल्ड रियल है ना, इसमें मिक्सिंग तो नहीं किया गया है, ये हॉलमार्क है ना, अच्छा पैसा वापस करेंगे तो आपको कितना, हमको कितना पैसा मिलेगा, ये डायमंड का क्या प्राइस है, ये वीवीएस क्या होता है, हमको तो सुपर डीलक्स बोला उसने, वो दुकान में इतने का है। इतना सारा क्वेश्चंस जब भी कोई कस्टमर ज्वेलरी खरीदने जाता है, इतना सारा क्वेश्चन पूछता है। कस्टमर अगर 2 ग्राम सोना भी खरीदेगा, 2 ग्राम सोना आज के भाव से अगर 22 कैरेट है तो लगभग 7-8 हजार रुपया है। 8 हजार का सोना खरीदेगा ना कस्टमर, कम से कम 15 क्वेश्चन पूछता है सेल्स पर्सन। और वही कस्टमर जब भी कोई नाइकी की दुकान में एक अच्छा शू खरीदता है और वो शू 6,500 का है, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछता है, खाली साइज पूछता है, ट्राई करता है, अच्छा लगा खरीद लिया। टीवी खरीदता है, इतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, गारंटी पूछता है, कौन सा कंपनी का है पूछता है, इतना क्वेश्चन नहीं पूछता है। बट ज्वेलरी खरीदने में इतना सारा क्वेश्चन पूछता है बिकॉज ज्वेलरी में नॉलेज है। इसके लिए अगर आपको ज्वेलरी इंडस्ट्री में जाने का है, जो भी जॉब के लिए अप्लाई करना है, अकाउंटेंट का हुआ, कोई भी होना, ये 3 चीज जो हमने वहां डाला है ना, ये 3 चीज आपको तय करना बहुत इंपॉर्टेंट है या लेना बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज द प्रोडक्ट बेस। ओके, तो वी हैव अ प्रोग्राम विच इज ओनली फॉर प्रोडक्ट। ऑनलाइन प्रोग्राम हमने डिवाइस किया है शेयर स्किल्स के साथ मिलके। इट्स अ 3 आवर प्रोग्राम, 1 आवर एवरी डे। ओके, इस प्रोडक्ट प्रोग्राम में आपको एवरीथिंग अबाउट गोल्ड,
everything about platinum, everything about diamonds and everything about gemstones. ये चारों चीज क्या होते हैं ना, ये चारों चीज का इंफॉर्मेशन ये प्रोडक्ट प्रोग्राम में आपको मिलेगा, तो यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट। डायमंड के बारे में राइट फ्रॉम हीरा कहाँ से आता है, उसका डेफिनेशन क्या है, कितना फसेट होते हैं, हीरा का वैल्यू क्यों बढ़ता है, हीरे को देखने का कैसा होता है, ये 4C होता क्या है, सर्टिफिकेट क्या होता है, ये सब कुछ आपको ये 3 घंटे में मिलेगा जब ये आपको प्रोडक्ट बेस करेगी। बट खाली प्रोडक्ट नॉलेज से कुछ नहीं होएगा अगर आपको पता नहीं है कि प्रोडक्ट नॉलेज से क्या करो। इसके लिए आपको ज्वेलरी मार्केट क्या है ना, उसका भी इंफॉर्मेशन जानना बहुत जरूरी है। तो ज्वेलरी मार्केट में हम सब कुछ सीखेंगे, अलग अलग बिजनेसेस क्या है ज्वेलरी में, रिटेल, होलसेल, ये हमने बड़ा ब्रांड देखा है DTC, वो करता क्या है, ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल क्या करता है। हमने सुना है कि अंधेरी ईस्ट में एक जोन है जिसको सीप्स बोलते हैं, उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है, वहां से तो लोग अमेरिका भी जाते हैं वहां से, तो होता क्या है, ये सारा इंफॉर्मेशन ना ज्वेलरी मार्केट में हम सीखेंगे। ये भी 3 घंटे का प्रोग्राम है जहाँ पे हम सारा इंफॉर्मेशन देंगे। और द लास्ट है द मैच, इट इज अबाउट मैचिंग योर रिक्वायरमेंट्स एंड मैचिंग द कस्टमर टू द ज्वेलरी। तो इसमें ना 2 काइंड ऑफ मैच होएगा, आपको क्या करना चाहिए उसका भी आपको आइडिया आ जाएगा। दूसरा, अगर आप रिटेल चूज करते हैं बिकॉज वो सबसे शॉर्टकट है और सबसे इजीएस्ट है, ओके, काउंटर पे जाना, तो वहां पे कस्टमर किस तरह का होता है और किस तरह से हमको मैचिंग करना पड़ता है कस्टमर का टेस्ट और प्रोडक्ट का इन्वेंटरी। तो ये हमने 3 प्रोग्राम बनाए हैं, 3 घंटे के। यू कैन चूज टू डू ऑल ऑफ देम इफ यू आर वेरी सीरियस। इफ यू आर नॉट वेरी श्योर कि मैं तीनों प्रोग्राम करके ज्वेलरी इंडस्ट्री में जाना चाहती हूँ, ओके, तो आप कोई भी एक से ट्राई कर सकते हैं कि मैं प्रोडक्ट का नॉलेज तो ले लूं पहला, अगर उसमें मेरे को मजा आया तो मैं ज्वेलरी मार्केट का नॉलेज लूंगी, अगर उसमें मजा आया तो मैं मैच का नॉलेज लूंगी। बिकॉज वी वॉन्ट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम आउटसाइड द ज्वेलरी इंडस्ट्री टू कम इन, इसके लिए हमने ये कोर्स भी ना बहुत सस्ता किया है, 600 रुपए में कोर्स किया है। आप कोई भी इंस्टीट्यूट में जाओ, कहाँ पे भी 60,000, 8,000, 10,000, 20,000 के नीचे कोई भी ज्वेलरी का कोर्स नहीं, वो भी एक कोर्स जो एक ही चीज खाली डायमंड सिखाता है। हम आपको जो कोर्स सिखाना जा रहे हैं, अगर आपने ये तीनों कोर्स कर लिया ना, आई एम श्योर दैट इफ यू आर स्मार्ट एंड इफ यू आर इवन इन FY और SY एंड यू अप्लाई फॉर अ ज्वेलरी जॉब, जब ये ज्वेलरी जॉब जब अवेलेबल होगी, आपका स्टार्टिंग सैलरी ना, ये जो आप पे कर रहे हो ना, उससे एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स ज्यादा होगा पहले महीने का पगार। तो जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप फर्स्ट मंथ में ही ना उसका 10 to 15 टाइम्स रिकवर कर लोगे। And it's very possible. People are going to be looking at new people because a lot of people who were working earlier, they were from different parts of the country and they've all gone back to their gaon and all of that, and a lot of retail companies will have requirements now. तो जैसे हम बोल रहे हैं कि ज्वेलरी इंडस्ट्री हिट है, वो हिट है थोड़े टाइम तक, 3 महीने तक, 6 महीने तक, लेकिन 4 महीने के बाद या 5 महीने के बाद वापस जब भी दिवाली के बाद मार्केट रिवाइव होएगा और ग्रो होएगा, तभी अच्छे लोगों की जरूरत पड़ेगी। ये अच्छे लोग वो होंगे जिसको इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी आता होएगा और उनको ये बेसिक्स आता है, तो उनको इजीली एंट्री मिल जाएगा। तो द होल आइडिया इज दैट वी वांट टू मेक यू इक्विप्ड सो दैट अगर आप चाहते हो तो आप जॉब के लिए यहाँ पे ज्वेलरी इंडस्ट्री में कोई भी जगह पे अप्लाई कर सकते हो। Also, we have a lot of connections. We may also be able to help some of you who are really very good. We may also be able to help you because we also do a lot of training for the jewelry retailers. Okay, Ash, that's fine. They've got a fair idea about what this is. You can stop share over this, and we can. I want to. Okay. तो ये हमारा कोर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल बताना चाहता हूँ। एक छोटा वीडियो भी है, लेकिन मैं वो वीडियो नहीं प्ले करूंगा बिकॉज we've actually spent almost 45 minutes or I'm sure some of you may want to be going back to some other class. तो ये जो कोर्सेज है, प्रोडक्ट कोर्स 600 रुपए का है, ज्वेलरी मार्केट का कोर्स 600 रुपए का है, मैथ का कोर्स 600 रुपए का है। ओके, ये कोर्सेज 9 तारीख से शुरुआत होंगे। ओके, वी आर मोस्टली प्लानिंग सुबह को 11:30 बजे ये कोर्स शुरुआत करते हैं, 11:30 to 12:30 तक ये कोर्स होएगा। ओके, प्रोडक्ट कोर्स अगर 3 घंटा है तो 3 दिन, 9, 10, 11। ओके, उसके बाद 1 दिन का गैप लेंगे और अगला कोर्स, उसके बाद अगला कोर्स। सो इफ यू आर रियली वेरी कीन, you should be looking at doing this, and you can get in touch with Vaibhav and put across to him that yes, we are interested,
and we can start this in the next week on the 9th. Yes, and this is a certified course, by the way, students. You will get the certificate Correct. for this course, as well as the employment opportunities updates you will be getting. We are also starting with a digital classroom concept, okay, where you will be getting all the upgrades about the jewelry industry, all the job opportunities. Naveen sir will be putting into that, and also me from my side will be putting those opportunities into that. So that concept is also there. करेक्ट. सो लाइक ही टोल्ड यू, डिजिटल क्लासरूम एक नया इनिशिएटिव है कि हम चाहते हैं कि जितने लोग बाहर से स्टूडेंट्स हैं वो ज्वेलरी इंडस्ट्री में आए. तो फॉर द फर्स्ट मंथ वी आर नॉट इवन गोइंग टू चार्ज यू एनीथिंग. एवरीबॉडी कैन बिकम अ पार्ट ऑफ द डिजिटल क्लासरूम. हम वो क्लासरूम में हर सेकेंड और थर्ड डे पे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डालेंगे ज्वेलरी इंडस्ट्री के बारे में, कुछ नॉलेज डालेंगे. तो ऑटोमेटिकली आप डिजिटल क्लासरूम में होगे तो आपको नॉलेज रोज मिलते जाएगा. आफ्टर 1 month वी आर गोइंग टू एक्चुअली स्टार्ट चार्जिंग. So the first month it's free. So everybody who's keen, should join into the digital classroom. Vaibhav will share the link with you, and you should become a part of that anyway. Okay? And ये जो program है, I think if you're really very keen, 600 rupees is not a lot of money. A lot of people spend more on 2 cups of coffee at a coffee shop. A lot of people from you may not be going to such coffee shops, but अपने आप पे ना थोड़ा खर्चा इन्वेस्ट करने शुरुआत करो. आप मत रुको कि कोई मेरे पे इन्वेस्ट करेगा या कंपनी इन्वेस्ट करेगा. अपने आप पे इन्वेस्ट करो और थोड़ा जिम्मेदारी लो लाइफ का, so that you can go ahead. That's all that I have to share. Okay. Any other information you can, Vaibhav का नंबर यहाँ पे है, you can call Vaibhav, you can talk to him, and the Google Classroom also Vaibhav will share all the details with you.